اپنے جانی بلٹن کا آغاز کریں۔ شہریاری میں ناجائز منافع خوروں کا راج، مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں، دکاندار شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ ملتان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، رمضان المبارک میں قیمتیں کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال، مارکیٹ میں ادرک 610 اور لہسن 700 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری نرخوں میں ادرک 470 جبکہ لہسن 524 روپے فی کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 360، پیاز 230 اور ٹماٹر 130 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 136، پیاز 150 اور ٹماٹر 70 روپے کلو مقرر ہیں۔ ٹینڈے 470، مٹر 130 اور آلو 80 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ سرکاری قیمت میں بھنڈی 286، مٹر 52 اور آلو 44 روپے فی کلو ہیں۔ مارکیٹ میں شملہ مرچ 300، بینگن 120 اور کچنار 350 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرمین کامران کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ رحمتوں برکتوں والے مہینے کی 16ویں سحری، ملتان کے شہری سحری کے لیے ریواڑی محلہ پہنچ گئے۔ مزید جانیں گے فراز رمضان سے۔ جی فراز، آگاہ کریے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے اور 16ویں سحری ہے۔ 16ویں سحری کی تیاریاں کرنے کے لیے شہری جو ہے وہ اس وقت اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور اس وقت ریواڑی محلے کا رخ کر لیا ہے۔ اور بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو ہے وہ تندوری پراٹھا، چنے اور مکھن اور مزید بات کرتے چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہاری اور مزید بھی جو ہے وہ بیسن اور اچار سے جو ہے وہ سحری کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت میرا کیمرامین ہارون آپ کو دکھا سکے تو شہری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں جو ہے وہ سحری کر کے۔ بھجن، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ سر بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، بہت پیارا ماحول ہے یہاں پر سحری کا۔ بھجن، کیا کھانے میں کیا آرڈر کیا آپ نے؟ ہم نے تقریباً سب چیزیں آرڈر کی ہیں، ان کی نہاری، پائے، چنے اور ساتھ مسی روٹی، ان کے تندوری پراٹھا، سب چیزیں آرڈر کی ہیں۔ جی بھجن، یہ بتائیے گا آپ کو سب سے زیادہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ ماشاءاللہ ان کے سب سے جو مجھے اچھا لگا وہ ان کی نہاری ہے، چنے بھی اچھے ہیں، پائے بھی اچھے ہیں، سب چیزیں اچھی ہیں۔ یہاں پر چنے، نہاری اور پائے کھاتے ہوئے شہری جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ چاٹی کی لسی بھی جو ہے وہ پی رہے ہیں اس وقت، اور بھی شہری موجود ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے بھائی جان، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ جی بالکل، اگر میرا کیمرامین ہارون آپ کو مزید بھی دکھا سکے تو یہاں پر اور بھی شہری موجود ہیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ سحری کرنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھجن، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ ہم جلاؤ پیر والے سے آئے ہوئے ادھر ملتان سحری کرنے کے لیے، تو شکر نہاری پائے سارا کچھ منگوایا، الحمدللہ کھا کے اب جا رہے ہیں واپس ہم۔ جی بھجن، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ بہت تعریف سنی تھی یہاں کے دیسی کھانوں کی، اس لیے اسپیشل آج جو نا ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت لطف اندوز ہوئے ہیں، پیٹ بھر کے کھایا ہے، اچھی سحری ہوئی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا نظام کیا ہے انہوں نے۔ بھجن، آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے اور اس وقت جو ہے وہ آپ نے کیا کھایا، آپ بتائیے گا۔ میں نہاری پسند ہے، نہاری منگوائی ہے، اس کے علاوہ پائے منگائے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے بنے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اگر میرا کیمرامین ہارون آپ کو دکھا سکے تو اس وقت جو ہے وہ شہری جو ہے وہ سحری جو ہے وہ تقریباً کر چکے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ سحری کرنے کے لیے چنے اور شکر اور تندوری پراٹھا اور چاٹی کی لسی جو ہے وہ آرڈر کی تھی۔ اس وقت بات کرنے کے لیے اور بھی کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ باہر سے غالباً جو ہے وہ سحری خریدنے کے لیے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ گھر والوں نے فرمائش کیا یا آج آپ کا خود کا دل تھا؟ دیکھیں، پہلے تو ہمارا خود کا دوستوں کا دل ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا رمضان شروع ہوتا ہے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں سحری کرنے کے لیے، کبھی چنے، کبھی پائے، کبھی نہاری، تو آج اسپیشل گھر والوں نے کہا کہ آپ باہر کرتے ہو، آج ہمارے لیے بھی باہر لے کے آؤ، تو میں نے ناشتہ پیک کروایا ہے اور میں گھر والوں کے لیے سحری لے کے جا رہا ہوں۔ پائے اور نہاری یہاں کی ریواڑی محلے کی مشہور ہے، تو میں گھر پیک کروا کے گھر والوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی ملتان کی جو فوڈ اسٹریٹ ہے اس کی رونقیں بھی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہیں۔ شہری جو ہے وہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ اس وقت اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بھائی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سحری کر لی آپ نے، اس وقت کیا کہیں گے؟ یار بہت اچھی سحری تھی ماشاءاللہ، اچھا لسی بھی بنائی ہوئی تھی، نہاری بھی تھی، پائے بھی تھے اور مکھن بھی تھا، بہت اچھی تھی ماشاءاللہ۔ بھائی جان، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہاں سے آئے ہیں سحری کرنے کے لیے؟ ہم شجاع آباد سے آئے ہیں اور ہم ان کا نام سنا ہے ریواڑی محلے کا، اور ہمیں اتنا لطف اندوز ہوا ہے کہ ہمارا پیٹ ماشاءاللہ باہر آ گیا سحری کر کے، اور ہمیں بہت مزہ ہے، انشاءاللہ کل بھی آئیں گے سحری کرنے۔ شہری جو ہے وہ باہر سحری کرنے آئے اور کافی جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ وی آئی پی بہترین وی آئی پی سحری کیا ہے، چاٹی کی لسی منگوائی ہے، کھانا بھی وی آئی پی تھا، بہت تعریف کرنے کی، جتنی بھی تعریف کریں بہت کم ہے بھائی۔
हारून, अगर आप जो है वो इधर दिखा सकें तो देखें कि किस तरह से जो है वो शहरी की रौनकें जो है वो बढ़ी हुई है। इस वक्त जो है वो शहरी ने रिवाड़ी मोहल्ले का जो है वो रुख कर लिया। और मजीद भी बात करते चलें तो शहरियों का कहना है कि कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए जो है वो रोजे रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस सिलसिले में आज शहरी जो है वो 16वें रोजे की सहरी करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। माह रमज़ान में जो है वो हर तरफ रहमतों और बरकतें जो है वो नाजिल हो रही होती हैं, तो फूड स्ट्रीट भी जो है वो उनकी रौनकें भी बहाल हो जाती हैं। फूड स्ट्रीट को भी जो है वो 4 चांद लग जाते हैं। शहरी आमतौर पर सहरी करने में जो है वो चने, निहारी और पाए पसंद करते हैं, तो इस सिलसिले में शहरियों ने जो है वो पहले से ही तैयारियां करने शुरू कर दी हैं। कुछ शहरियों ने सहरी कर ली और कुछ जो है वो अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और जो है वो यहाँ पर सहरी खरीदते दिखाई दे रहे हैं। सहरी के लिए जो है वो चने और दही खरीद कर जो है वो अपने अपने घरों में ले जाएंगे और जो है वो सहरी करेंगे। इनका कहना है कि कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए रोजे रखना जो है वो बहुत जरूरी है। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि रमजान मुबारक में खजूर की मांग में इजाफा। मुल्तान में इफ्तारी का अहम जुज़ खजूर शहरियों की पहुंच से दूर। महंगाई की वजह से शहरियों के लिए खजूरें खरीदना भी मुश्किल हो गया। मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला थम ना सका। अफ्तारी का अहम जुज़ खजूर शहरियों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। खजूर की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी कीमतें सुनकर परेशान हैं। मैं खजूरें लेने आया था, बहुत महंगाई है, तो खजूरें लेने का दिल नहीं करा। 600 रुपये किलो बता रहा है दुकानदार। महंगाई बहुत है, अब ऐसे ही जा रहा हूँ, लेके नहीं जा रहा। घर से निकला था खजूर लेने, पर खजूर लेके नहीं जा रहा। शहरियों का कहना था कि खजूर के रेट इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी नहीं खरीद सकता। अफ्तारी के लिए खजूर खरीदने आए थे, मगर कीमतें सुनकर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। पिछले साल ईरानी खजूर 800 रुपये किलो थी, इराकी 600 रुपये किलो थी। इस बार माशाल्लाह इराकी 300 रुपये किलो है और ईरानी खजूर 400 रुपये किलो है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा साल खजूरों के रेट कम हुए हैं। गुज़िश्ता साल मार्केट में ईरानी खजूर 800 रुपये किलो, जबकि इस साल 400 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन हारून के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ का कदीम खजूरों वाला बाग इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस उजड़ गया। शहर के वस्त में मौजूद तुलेरी बाग अंग्रेजी रोड में लगाया गया था, जबकि अंग्रेज दौर में लगाया गया। शहरियों का कहना था कि इस बाग की खजूरें पाकिस्तान भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। मुजफ्फरगढ़ के वस्त में मौजूद तलीरी कनाल से मुल्हिका अंग्रेज दौर का तारीखी बाग इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस उजड़ गया। कई एकड़ पर मुश्तमिल खजूरों के बाग में नायाब इकसाम की खजूरें पैदा होती हैं। शहरियों का कहना था कि बाग जिला कौंसिल की मलकियत है, मगर अब यहाँ पर खाना बदोशों के डेरे और जगह जगह सीवरेज का पानी है। ये जी बाग बहुत मशहूर था, यहाँ की खजूरें बड़ी मशहूर थी, अंग्रेजों के दौर के लगे हुए हैं बाग। यहाँ पर गंदे तालाब हैं, पानी है, जानवर बंधे हुए हैं। इंतजामिया ने इधर कोई भी कभी काम नहीं कराया। हालांकि इतनी प्यारी जगह है, बहुत प्यारी, साथ पार्क बना हुआ है, तो इंतजामिया को चाहिए कि इस पर थोड़ा तवज्जो दें और इसकी थोड़ी साफ सुथराई कराएं। इसकी बाउंड्री वाल, दीवार वगैरह वो दिलवाएं, तो ये अच्छा इकदाम होगा उनके लिए भी, हमारे लिए भी। शहरी कहते हैं कि एक वक्त था जब इस बाग की नायाब खजूरें पाकिस्तान भर में भेजी जाती थी। अब 4 दीवारी ना होने की वजह से जानवर बाग में दाखिल हो जाते हैं। कई बार इंतजामिया को दरखास्त दे चुकी है, मगर अभी तक किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। शहरियों का कहना है कि अगर जिला इंतजामिया बाग की खूबसूरती की तरफ तवज्जो दे तो ये एक अहम तफरी गाह भी साबित हो सकता है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम के हसूल में मुश्किलात का सामना। मुबारकपुर और गिरदनवा में इमदादी रकम लेने आई रोज़ादार मुस्तहिक़ ख़वातीन ढूंढ गए। खवातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम का हसूल मुश्किल हो गया। मुबारकपुर, चक लोहारा, हतीजी, झांगड़ा, शर्की समेत दीगर इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रकूम की अदायगी के लिए 17 डिवाइसेस में से 11 बंद हैं, जिसकी वजह से मुस्तहिक़ खवातीन को इमदादी रकम के हसूल में मुश्किलात का सामना है। मुस्तहिक़ खवातीन एक तरफ रिटेलर्स का शिकवा करती नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब रिटेलर्स भी BISP और बैंक की इंतजामिया का शिकवा कर रहे हैं। इनका कहना था कि ना ही नेटवर्क ठीक हो रहा है, ना ही बैंक की इंतजामिया कोई खास लाहेअमल बना रही है, जिसकी वजह से रोजादार खवातीन ख्वार हो रही हैं। जब से शुरू हुआ है ना, 1 घंटे की एवरेज हो रही है सारा दिन में। 112 का एरर है। तमाम जो अफसरान है सबको, BISP वाले हैं या HBL वाले हैं, सबको बोला है कि ये मसला आ रहा है। आते हैं, रिकॉर्ड तो बना लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। मुस्तहिक़ खवातीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत इन्हें बाइज्जत तरीके से रकम अदा करने के लिए मुनासिब लाए अमल बनाए, ताकि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बर वक्त हासिल करके ईद की खरीदारी कर सकें। कैमरा टीम के हमरा दिलशाद अली, रोही, मुबारकपुर। रमजान मुबारक के दौरान पेशेवर भिखारियों की भावलपुर शहर पर यलगार। भिखारियों का शहर की मार्केट्स और चौक चौराहों पर कब्जा।
मुनज़्ज़िम गिरोह शहरियों की जेबें खाली करने लगे। ट्रैक के दौरान पेशावर भिखारियों ने बहावलपुर शहर पर हल्ला बोल दिया। भिखारियों ने शहर की मार्केटों और चौक चौराहों पर कब्जा जमा लिया। शहर के एम मराकेज, सर्कुलर रोड, मेडिकल मार्केट, शादरा चौक, लारी अड्डा, सरायकी चौक और फरीद गेट भिखारियों के रडार पर आ गए। भिखारी खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेरे जमा लिए हैं। ज्यादातर पेशावर भिखारियों का ताल्लुक खानेवार और लैया से है। भिखारियों के मुनज़्ज़म गिरोह शहरियों की जेबें खाली करने लगे हैं। भिखारी शहरियों से भीख मांगने तक इनका पीछा करते हैं और भीख न मिलने पर बात लड़ाई झगड़े तक भी पहुंच जाती है। शहरियों के साथ दुकानदार भी गदागरों से तंग आ गए हैं, जबकि महकमा सोशल वेलफेयर की एंटी बैगरी कैंपेन भी दम तोड़ गई है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। बहावलपुर पुलिस पतंगबाजी रोकने के लिए मुतहरिक हो गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर की पतंगबाजी रोकने के हवाले से आगाही वॉक में शिरकत। पतंगबाजी करने वालों से बचना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर कहते हैं कि पतंगबाजी करने वाले छोटे बच्चे हों या बड़े, केमिकल डोर इस्तेमाल करें या ना करें, हर तरह की पतंगबाजी पर पाबंदी है। तो जो बच्चा खुद कमाता नहीं है, नेचुरली किसी से उसने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट ही दी है, तो जो 109 की होती है एयानत किसी जुर्म के अंदर करना, उसके अंदर जाहिर है बुजुर्गों का किरदार सामने आ जाता है। तो लेकिन मैं यही तवक्को करूंगा कि माशाल्लाह सारे इस मुल्क का हिस्सा हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कौन ये चाहेगा कि जिसका किसी और का बच्चा जा रहा हो और गर्दन उसकी कट जाए और वो खूनो खून होकर सड़क पे पड़ा हो, और क्या गारंटी है कल को आपका अपना कोई प्यारा इसका नहीं बन सकता, निशाना नहीं बन सकता। बहावलपुर पुलिस ने ताजरों के हमरा पतंगबाजी के खतरनाक नतायज बताने के लिए आगाही वाक का एहतमाम किया। वाक में बहावलपुर के मुख्तलिफ बाजारों और मरकजी अंजुमन ताजरान के सदूर ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि ताजिर तमाम अच्छे इकदाम पर जिला पुलिस के संग हैं। ताजरान आज डीपीओ साहब की सरबराही में बहावलपुर में ये रैली निकाली जा रही है, जिसमें शहरी, सिविल सोसाइटी और ताजरान मिलके एक पैगाम देना चाहते हैं पूरे मुल्क को, बहावलपुर को बिलखसूस और पूरे मुल्क को, कि पतंगबाजी से जो जानी नुकसान हो रहे हैं, इसके लिए वालिदैन को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, कानून भी हरकत में आएगा और हम सिविल सोसाइटी शहरियान इसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान इसकी शदीद मजम्मत करती है। किसी किस्म की धाती डोर या पतंगबाजी की इजाज़त कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए और इंतज़ामिया के इस क्रैकडाउन में अंजुमन ताजरान इंतज़ामिया के साथ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज खान ने मुतनब्बे किया कि पतंगबाजी से सब बाज आ जाएं, वरना पतंगबाजी करने वाले बच्चों और उनके वालिदैन के खिलाफ दफा 109 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में मुनाकिदा सेमिनार में ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही दी गई। रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस नई नस्ल को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही देने के लिए मैदान में आ गई। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस राना सरफराज अहमद ने ट्रैफिक कवानीन की आगाही देने के लिए लेक्चर दिया। डायरेक्टर टेवटा अली जुल्फकार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियर हबीब अहमद सियाल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर और तलबात की बड़ी तादाद ने रोड सेफ्टी सेमिनार में शिरकत की। हमारा इधर सिर्फ एक मकसद था, सिर्फ एक, कि हमारे ये जो नौजवान नस्ल है इनको हमने कैसे बचाना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में ये लोग हैं जो बाइक राइडर हैं और हेलमेट का इस्तेमाल करवाना है इनसे। ये हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे, हमारी सड़कें, हमारे रोड्स महफूज रहेंगे। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस राना सरफराज अहमद का कहना था कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। तेज रफ्तारी ट्रैफिक हादसात का सबब बनती है। वन व्हीलिंग एक जानलेवा खेल है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। ये हमारे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है। आज से पहले भी सेमिनार्स होते रहे हैं, लेकिन इस लेवल की एक्सीलेंस का आना ये हमारे टेवटा के तमाम इदारों के लिए फ़ख्र की बात है। मैंने रिक्वेस्ट की है सर से कि हमारे टेवटा पंजाब के रहीम यार खान में और इदारे भी हैं, वहाँ पर भी अवेयरनेस के सेशन होने चाहिए। अवेयरनेस अगर होगी तो हादसात की रोकथाम होगी। आज हमें ये जज्बा जो है वो हमारे घर पर मिला है और हमारे इनके सीनियर जो है वो आपके पास फैकल्टी जनाब सरफराज साहब हमारे पास वो तशरीफ़ लाए और बच्चों के साथ जिस तरह से ये आगाही का सिलसिला रहा है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें बहुत पेशरफ्त होगी और बच्चों के हादसात में जो है वो आपके पास बचाव होगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके हादसात की शरह में कमी लाई जा सकती है। इससे कीमती जानों को भी महफूज बनाने में मदद मिलती है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्तान में कस्टम हुकाम सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त के खात्मे के लिए एक्शन। कस्टम इंटेलिजेंस ने रवा माली साल में मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारकर 112 मिलियन मालियत के गैर मुल्की सिगरेट को कब्जे में ले लिया। गैर मुल्की सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त का सिलसिला न थम सका।
सिगरेट्स की गैर कानूनी फरोख्त से हुकूमती खजाने को सालाना 300 अरब का टीका लगाया जाने लगा। सिगरेट स्मगलिंग के खात्मे के लिए कस्टम हुक्काम ने कार्रवाइयां मजीद तेज कर कस्टम इंटेलिजेंस ने रवा माली साल में मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारकर 112 मिलियन मालियत के गैर मुल्की सिगरेट्स को कब्जे में ले लिया। साल 2023 में पकड़े गए 172 मिलियन रुपए मालियत के सिगरेट्स को नजर आतिश भी किया गया। कस्टम इन्फोर्समेंट ने माह फरवरी में 18 मिलियन के इम्पोर्टेड सिगरेट्स को कब्जे में लिया। कस्टम इन्फोर्समेंट ने सिगरेट्स की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। सिगरेट्स की गैर कानूनी स्मगलिंग से करोड़ों रुपए की कस्टम ड्यूटी चोरी की जा रही है। सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सरबराही ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास, ममनूआ अद्वियात की फरोख्त पर भारी जुर्माने और सजाएं सुनाई गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर की ज़ेर सदारत ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में ममनूआ अद्वियात की फरोख्त पर भारी जुर्माने और सजाएं सुनाई गईं, जबकि अद्वियात साज कंपनियों, मेडिकल स्टोर्स और अताइयों के केसेस ट्रायल के लिए ड्रग कोर्ट भेज दिए गए। ऐसे चार्जेस हैं जो कि हम ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू हम उनको चेक भी करते हैं, उनको डिस्कस भी करते हैं, उनको प्रॉपर शो कॉज करते हैं जो डिलिंक्वेंट्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आज हमने 21 केस रखे हुए थे, जिसमें ड्रग से लाइसेंस के बहुत ज़्यादा केसेस थे। तो अवाम को मैसेज यही है कि जो भी काम करें कानून और कायदे के मुताबिक करें। ड्रग एक्ट है हमारा, उसके मुताबिक करें। ड्रैप एक्ट है, उसके मुताबिक करें। इजलास में ममनूआ और ज़ैदुल मियाद अद्वियात की फरोख्त के केसेस बारे भी समाअत की गई। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर्स को फौरी सरबमोहर किया जाएगा, जबकि नशावर अद्वियात और इंजेक्शन की सप्लाई में मुलविस माफिया के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल खसूसी चेकिंग टीमें तश्कील दे दी गई हैं। क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें करते हैं। हम उनको प्रोसिक्यूट करते हैं, क्योंकि फर्दर जो उसके ऊपर फाइन करना है या उसको पनिश करना है, 7 साल तक की मैक्सिमम सजा है और 2.5 करोड़ तक का फाइन है। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास में केसेस की समाअत करके 6 केसेस को ट्रायल के लिए ड्रग कोर्ट भेज दिया। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी, सेक्रेटरी ड्रग क्वालिटी कंट्रोल ड्रग इंस्पेक्टर उस्मान गनी, जुनेद सनामा, मोहम्मद साबिर समेत दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। कोटद्दू ज़िले इंतजामिया ने तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कमर कस ली। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल का जीटी रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। कोटद्दू में जिला इंतजामिया तजावुज़ात के खिलाफ इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी ने मेन जीटी रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। कोटद्दू जिला बनने के बाद डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने मेन जीटी रोड को रेडी और फट्टा माफिया से खाली करवा दिया था, लेकिन दुकानदारों ने दोबारा सड़क पर सामान रखना शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी का कहना था कि तजावुज़ात कायम करने वाले दुकानदारों को वार्निंग जारी करने के साथ जुर्माने भी किए गए हैं। तजावुज़ात माफिया और ग्राफ फरोशों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू। डेरा गाजी खान पुलिस का एहसन इकदाम। ख्वाजा सरा कम्युनिटी और माजूर अफराद में राशन तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। डेरा गाजी खान पुलिस का एहसन इकदाम। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में इंचार्ज मैडम जुबैदा की ज़ेर निगरानी ख्वाजा सरा कम्युनिटी, माजूर और मुस्तहक अफराद में 200 से ज़ायद राशन बैग तकसीम किए गए। मैडम जुबैदा का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि मुआशरे में नज़रअंदाज किए जाने वाले लोग जिनका गुजर बसर महदूद वसाइल के बायस इंतहाई मुश्किल है, ऐसे लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, स्पेशल पर्सनस और स्पेशली माजूर अफराद को राशन देने का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हमने आज तक 200 के करीब अफराद को इंटरटेन किया है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ राशन की फरहमी और दीगर मसाइल के फौरी हल पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। और माशाल्लाह से राशन मिल रहा है, सब शीमेल्स इकट्ठे हुई हैं और हमें बहुत अच्छा लगा है कि हमें इतना तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। सेहत और हमारी सेफ्टी मौजूद है, जिससे हमें हर चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ मिल रही है, मुहैया कर रही है। हम उसके दिल से शुक्रगुजार हैं। रमज़ान शरीफ का महीना है, हमारे ट्रांसजेंडर जो आए हुए हैं, हम इनके बहुत तावन कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ में ये जो लोग हैं रोज़े रखते हैं, तो इनका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा लोग होते हैं, इनके हम बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वाले हेल्प करते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी तादाद में तो सबसे कम है, लेकिन इनके मसाइल दूसरी कम्युनिटी से ज्यादा हैं। पुलिस की जानिब से इनकी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात काबिल तहसीन हैं। कैमरामैन मुज्तबा सरवर के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान। चेयरमैन वज़ीर आला मॉनिटरिंग कमेटी सलमान नईम कहते हैं कि निगहबान रमजान पैकेज के तहत मुल्तान में हजारों खानदानों तक राशन पहुँचाया गया।
मुल्तान में सुथरा पंजाब मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। जिला इंतजामिया और CEO वेस्ट मैनेजमेंट का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा, सफाई इंतजाम का जायजा भी लिया। कमिश्नर मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर के ज़ेर एहतमाम आगाही रैली भी निकाली गई। कमिश्नर का कहना था कि नई मशीनरी के आने से सफाई ऑपरेशन में बेहतरी आई है। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत 18,000 टन कूड़ा करकट को साफ करके लैंडफील्ड साइट्स पर मुंतकिल कर दिया गया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 900 टन से ज्यादा कूड़ा करकट उठाने। आगे बढ़े, आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच का MNA सरदार अमार अहमद खान लगारी के हमरा जहांपुर का दौरा। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर का इफ्तिताह किया। जहांपुर के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने MNA सरदार अमार अहमद खान लगारी के हमरा सेंटर का इफ्तिताह किया और स्कूल का विजिट भी किया। स्कूल प्रिंसिपल अस्मा ज़हरा ने उनको ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब साहब की तरफ से स्पेशल सब्सिडी दी जा रही है मॉडल बाज़ारों में, यूटिलिटी स्टोर्स पे। मॉडल बाजार में 13 अशिया हैं जिन पे के बाजार की निस्बत 25% जो है लेस प्राइस पे आपको चीज़ें दी जा रही हैं। यहाँ पे हमने लोगों से उनका फीडबैक भी लिया है और वो बड़ा मुतमईन थे इससे कि जनाब यहाँ पे क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच और सरदार अमार अहमद खान लगारी ने मॉडल बाजार में कायम एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप और यूटिलिटी स्टोर का भी विजिट किया, जहां उन्होंने शहरियों से अशिया की क्वालिटी और निर्खों बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वजीर आजम वजीर आला पंजाब के हुक्म पर मॉडल बाजारों में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप और यूटिलिटी स्टोर पर स्पेशल सब्सिडी दी जा रही है, जहाँ शहरियों को 30 अशिया पर 25% सब्सिडी मिल रही है, जिससे लोग भी काफी हद तक मुतमईन है। जहांपुर से मुंतखब MNA सरदार अमार अहमद खान लगारी का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कमी का सामना है, जैसे मजीद बढ़ाकर इस कमी को दूर कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी की वजह से, उनके खसूसी इस पैकेज की वजह से जितनी भी यहाँ पे अशियाएं फरोख्त हो रही हैं वो कम से कम 20 to 25% डिस्काउंट रेट पे फरोख्त हो रही हैं। यहाँ का निज़ाम भी अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, वो आटे की कमी है। तो इंशाल्लाह हम उसको भी पूरा करके रहेंगे ताकि आवाम को रिलीफ हम दे सकें ज़्यादा से ज़्यादा। डिप्टी कमिश्नर MNA और दीगर शख्सियात ने विजिट के बाद MC के सब्जाजार में फूलदार पौधे भी लगाए। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल रोही, जहांपुर। अब रुक करेंगे जहानिया का। जहानी में गंदम की फसल आखिरी मराहिल में दाखिल है। काश्तकार को कहना है कि गंदम का अभी तक सरकारी रेट मुकर्रर नहीं किया गया। जहानिया में गंदम की फसल आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने गंदम का रेट मुकर्रर नहीं किया। काश्तकारों का कहना था कि महंगी खाद और अद्विया से अखराजात में इजाफा हुआ है, इसलिए हुकूमत गंदम का सरकारी रेट 5,500 रुपए फी मन मुकर्रर करे। काश्तकारों ने मजीद कहा कि हुकूमत खाद का रेट कम करके किसानों को आसान और बिला सूद कर्जे भी फराहम करे। जी, गंदम आपके सामने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, लेकिन हुकूमत ने अभी इसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया, कोई सेंटर कायम नहीं किए गए। सही है। उसके अलावा जो है गंदम का अभी तक कोई रेट फाइनलाइज नहीं हुआ। हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हैं, ट्यूबवेल का बिल इतना ज़्यादा आता है, उसके ऊपर टैक्सेस हैं। उसके अलावा खाद हमने 13,000 में ख़रीदी है और उसके अलावा जो है बीज हैं, स्प्रे हैं, इतने महंगे हैं। उसके अलावा फिलहाल जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर रेट जो है अभी नहीं दिया गया। किसानों का कहना है कि गंदम की कटाई 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, मगर शहर में कोई भी खरीदारी सेंटर नहीं बनाया गया। हुकूमत जल्द गंदम की खरीदारी सेंटर को ओपन करके बारदाना का शेड्यूल भी जारी करे। कैमरा टीम के साथ अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। 15 रमज़ान हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत बासआदत। मुल्तान में मुखय्यर हजरात ने इस हवाले से इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्तान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत पर इफ्तार दस्तरखान बिछाया गया। रोज़ादारों की बड़ी तादाद ने इफ्तार दस्तरखान पर रोज़ा इफ्तार किया। बानी दस्तरखान का कहना था कि आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है, उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए खास स्वाम दस्तरखान का एहतमाम किया गया। 15 रमज़ान शरीफ को उस सिलसिले में हम खुशी का इजहार करते हैं। आपस में मोमिनीन मिल बैठ के इस मौके को खूब इंजॉय किया जाता है। इफ्तार दस्तरखान में गज़नफर मेहदी के दोस्त अहबाब समेत आम शहरियों ने भी शिरकत की, क्योंकि इस दिन जनाब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो नवासे रसूल हैं और उनका जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न से या इस जो दस्तरखान का जो एहतमाम किया गया है, इससे न सिर्फ एक जश्न का माहौल है बल्कि तमाम मुसलमान भाइयों को आपस में मिल बैठने का एक जरिया भी है। दुनिया भर में, न सिर्फ पाकिस्तान में, मैंने देखा दुनिया भर में काफ़ी जगहों पे मैं गया हूँ, काफ़ी मुल्कों में, तो इस मौका पे दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। और ख़ास तौर पे फ़िक़्ह जाफ़रिया में ये रिवायत है कि आज के दिन मोमिनीन इकट्ठे होते हैं और दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है।
افطار میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ ماہ مقدس میں مل بانٹ کے کھانے سے جہاں رزق میں برکت ہوتی ہے وہیں عزیز و اقارب کے ہمراہ افطار کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ عباس روہی، ملتان۔ میاں والی کے معذور نوجوان نے ہمت اور حوصلے کی مثال قائم کر دی۔ فہد گل نے معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا۔ پیدائشی معذور فہد گل کا شمار میاں والی کے بڑے ٹیلر ماسٹرز میں ہوتا ہے۔ میاں والی کے بہترین ٹیلر ماسٹر کی بات کی جائے تو ان میں فہد گل کا بھی شمار ہوتا ہے، لیکن فہد گل بچپن ہی سے معذور ہیں۔ معذوری کے باوجود بھی یہ نوجوان میاں والی کے بہترین ٹیلر ماسٹر میں شمار ہوتا ہے۔ پیدائشی معذور فہد گل دوسروں کے لیے ہمت اور حوصلے کی مثال بن گیا۔ اس نے بھیک مانگنے کی بجائے محنت کر کے روزی کمانا بہتر سمجھا۔ اس کا کہنا ہے کہ دکان پر آنے جانے کے لیے سائیکل ریڑھی کا استعمال کرتا ہوں۔ راستے میں کئی لوگ اس کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں مگر وہ مدد نہیں لیتا کیونکہ وہ کام کر کے رزق حلال کماتا ہے۔ دیگر معذور افراد بھی محنت کر کے روزی کمائیں۔ گھنٹہ سائیکل پہ میں نے گھنٹہ لگ جاتا ہے آتا۔ ہاں جی۔ تو یہ کام کہاں سے سیکھا ہے؟ کام میں نے یہیں سے سیکھا ہے، میاں والی سے؟ ہاں جی، میاں والی سے، استاد خرم سے سیکھا ہے۔ فہد گل کے استاد خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ فہد گل 4 سال سے اس کے پاس کام کر رہا ہے۔ وہ بڑے دل کا مالک ہے، ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اکثر اوقات ہم پر پیسے خرچ کرتا ہے۔ میں نے اکثر دسیا تھا استاد جی، میں راستے سے کافی بندے مل دیں میں مٹھی پیسے دینے میں نہ گندا کوشش ہوتی ہے میں عادت نہ اپناؤں نہ انکار کر دیں میں اپنا کام کر سکتا بڑے عرصے تو دل کا بڑا ہے کبھی گھبرایا نہیں میں محتاج ہوں۔ فہد گل معذوری کے باوجود بھی عام لوگوں کی طرح بھرپور زندگی گزار رہا ہے۔ فہد گل نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فہد گل ہزاروں معذور افراد کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت